minutes is the time. Then we have third paper 9702, पेपर 32 और 33 और 34 डिपेंड कि आपको कौन सा प्रैक्टिकल स्लॉट मिलता है. That paper 3 is practical. Two questions. $40 marks. And 2 hours. एग्रीगेट परसेंटेज में बेटा पेपर 1 जो है वो आपका 31% ऑफ एएस है. पेपर 2 will be of 46% of AS and paper 3 will be of 23% of AS. In this way आपका टोटल AS का 100% होता है. इसको हाफ करने तो बेसिकली आपके पास टोटल ए लेवल्स का हो जाएगा. AS का 50% एंड A2 का 50%. Chapter wise, when we divide topics, syllabus content, first one physical quantities and units. Second, kinematics. Dynamics. Forces, density and pressure. Then work, energy, power. We have deformation like spring 1, which we have in O levels, spring 1, Hooke's law. So similarly, we have whole chapter here in detail, deformation. Then we have wave motion. And in wave, we have two chapters actually. One is wave motion and other one is superposition of waves. Then we have electricity. DC circuits. And particle physics. इसमें न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिविटी लास्ट ईयर था सिलेबस में, वो यहाँ से अब शिफ्ट होके A2 में हो गया है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड था आपके पास पहले AS में, वो भी यहाँ से हटके अब A2 में हो गया. So these are the syllabus contents. ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीक की क्लास है, फर्स्ट क्लास है. तो इसमें हम कुछ पहले ओ लेवल्स की चीजें जो तुम्हें यहाँ पर बेटा याद रखनी होंगी, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ओ लेवल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तुम्हें क्या क्या चीजें ओ लेवल्स की याद रखनी है. फिर मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा. अभी हम टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं.
उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर प्रीरेक्विजिट. प्रीरेक्विजिट मीन्स के आपको क्या फ्रॉम ओ लेवल्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. तो ये पूरा डिटेल में है, पहले ये समझ लें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. ओ लेवल्स के सारे फॉर्मूलाज तुम्हें पता होने चाहिए. मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, weight is equals to mg, uniform speed is equals to s over t. S is the distance, t is the time. Average speed जिसको आप v average कहते हैं, that is equals to total distance divided by total time. नोट करते जाना सब अपने पास. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v minus u over t. v is the final speed, final velocity. U is the initial speed or initial velocity. Then you have resultant force, that is equals to F is equals to ma. Then you have studied net force, or you can say resultant or net force is the same thing, is equals to applied force minus opposing force. और इसका फॉर्मूला है ma is equals to net force और resultant force मतलब ma applied force minus opposing force. Pressure is equals to force over area. P is the pressure, or pressure is equals to rho gh. Rho is the density. Then work is equals to F into D. F and D are parallel to each other. और फिर याद करो तो इसी F into D से रिलेटेड ही एक मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला था, वहां पर भी F into D था, बट डिफरेंस ये था कि F and D are perpendicular to each other. Then power is equals to work over time. Work or energy is the same thing. Power is equals to work over time. Kinetic energy is equals to half mv square. Gravitational potential energy is equals to mgh. Efficiency is equals to output over input multiply by 100. अगर परसेंटेज में आएगा तो multiply by 100.
Then we have V is equals to F lambda. जो AS में यूज होगा वो बता रहा हूं मैं आपको. Frequency is equals to 1 over T. Wavelength is equals to given distance divided by number of waves. Time period is equals to given time divided by number of waves. करंट के लिए बेटा I is equals to Q over T. Q is equals to NE. N is the number of electrons और E की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए. 1E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19. नोट कर लें 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये 1E की वैल्यू है. तो रिमेंबर Q is the charge. Q charge है. Then I is equals to NE over T भी कह सकते हैं क्योंकि Q NE के बराबर है तो NE over T. T is the time. ये सब चीजें नोट करते जाएं. E बेटा एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें कितना चार्ज होता है उस E को हम कहते हैं. एक इलेक्ट्रॉन है अगर जैसे कॉपर वायरस में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है वो कहलाती है ये 1.6 into 10 to the power minus 19. V का फॉर्मूला W over Q. W का मतलब वर्क भी होगा या एनर्जी भी होगा. इज द सेम थिंग. Then V is equals to IR. R is equals to R1 plus R2 plus R3 and so on. This is for series. And R is equals to 1 over R1, 1 over R2, 1 over R3 and so on. Whole power minus 1 is for parallel. Power का formula P is equals to IV. I square R. V square upon R. सर एक सेकंड के लिए पुरानी वाली स्क्रीन दिखा देंगे, मैं कॉपी करना भूल गया था थोड़ा सा. हाँ आ जाओ पीछे. ये है फर्स्ट स्क्रीनशॉट लेते जाए. ये फर्स्ट पेज है. This one second one. This is third. And this one is fourth. Now,
अब बेटा अभी मैं चैप्टर शुरू नहीं कर रहा, राइट? अभी मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि एएस में तुम्हें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ट्रैप मिलेगा, किस तरह से तुम्हें क्वेश्चंस को समझना होगा, यूनिट्स, हाउ यूनिट्स विल बी कन्वर्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ माय क्वेश्चन इज कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक बात बताएं कि 2.4 माइक्रोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने नैनोमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? दिस इज वी कॉल प्रीफिक्सेस, इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एएस में स्ट्रॉन्ग करना होगा पहला कॉन्सेप्ट, और वो पहला कॉन्सेप्ट है बेटा प्रीफिक्सेस। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस क्या है कि किसी भी यूनिट से पहले तुम्हारे पास कोई एक अगर अल्फाबेट लिखा हो, एम सी यू, तो इसका मतलब यह है कि आपने कन्वर्ट करके ये बताना है कि वो एक्चुअल वैल्यू में कितना है। मतलब मैं यहां तुम्हें बताऊं कि 10 डेसीमीटर 1 मीटर के इक्वल है। 10 to the power 2 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह से 10 to the power 3 इसको ये कह लो आपके 10 to the power 3 मीटर फिर 1 किलोमीटर के इक्वल है। देखो अगर मैं इस रिलेशन को ये लिख रहा हूं तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि 1 डीएम, तो तुम कहोगे 1 डीएम इज इक्वल टू 0.1 मीटर। इसी रिलेशन को अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर तो आप कहेंगे इट मींस 10 to the power -2 मीटर। इसी रिलेशन को रिवर्स करके अगर आप 1 मीटर लिखोगे तो आप कहोगे 10 to the power -3 किलोमीटर। इसी तरह से 1 मीटर is equals to 10 to the power -6 माइक्रोमीटर। इसका मतलब माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए देखो एक बात समझना कि माइक्रो का मतलब है 10 to the power, माइक्रो मीन्स 10 to the power 6। अगर कहीं पर तुम्हारे पास माइक्रोमीटर लिखा है और वहां पर 10 to the power 6 में वैल्यू, माइक्रोमीटर का मतलब अगर कहीं लिखा होगा तुम्हारे पास लेट्स से 2.1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर 1 micrometer is equals to 10 to the power -6 meter। 1 nanometer is equals to 10 to the power -9 meter। 1 picometer is equals to 10 to the power -12 meter। 1 gigameter is equals to 10 to the power 6 meter। 1
10 to the power 9. 1 मेगामीटर, मेगा का मतलब 10 to the power 6, और 1 टेरा मीटर, कैपिटल T मीन्स टेरा, 10 to the power 12 मीटर। अच्छा, अब डबल तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये वाले याद रखने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट हम सिर्फ इसी से कन्वर्ट करेंगे सारे। देखो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। अब अगर तुम्हें स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, मैं उसका तरकीब बताता हूँ वो कैसे होगा। तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि अगर मैंने लिखा 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 0.1 डेसीमीटर। 10 to the power 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर is equals to 10 to the power minus 2 मीटर। इसका मतलब ये कि अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है यूनिट को, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 3, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। अब सबसे पहले तो मैं तुम्हें कन्वर्ट करने का मेथड सिखाऊं कि लेट्स से क्वेश्चन 1 वो आपसे कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग। 1 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करो गीगामीटर में। तो देखो सबसे आसान मेथड कैसे होगा, अलग अलग मेथड है सबके, तुम अपने अपने मेथड से कर सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, माइक्रोमीटर आप कहेंगे 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर होता है, और 1 गीगामीटर 10 टू द पावर +9 मीटर होता है। इसका मतलब अगर इन दोनों को कन्वर्ट करो तो तुम कहोगे मीटर में कन्वर्ट करना, जरा यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो इस रिलेशन को तुम लिख सकते हो, देखो 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर 1 मीटर के इक्वल होगा। 10 टू द पावर 6 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाके डिवाइड हो गया। गीगा मीटर में आओ तो 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9 गीगा मीटर, तो तुम कहोगे यहां पर ये 1 मीटर के इक्वल होगी। 10 टू द पावर 9 इस साइड पर आकर मैंने डिवाइड कर दी। ये क्यों किया? क्योंकि 1 मीटर के लिए हमेशा इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 1 मीटर के लिए हमेशा सॉल्व कर लो। अगर तुमने 1 मीटर के लिए सॉल्व कर लिया तो फिर अब आप इसको मैथमेटिकली रेशियो से सॉल्व कर लेंगे कि 1/10 -6 माइक्रोमीटर अगर 1/10 की पावर 9 गीगा मीटर के इक्वल है, तो 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1/10 की पावर 9 इज इक्वल टू 1/10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये 10 टू द पावर -6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 टू द पावर +9 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, x इज इक्वल टू ये -6
यहां पर गया है, तो ये -6 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये बन जाएगा 10⁻−15। देखो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर पहले दिन से आपको थोड़ा सा ये आइडिया होगा कि यूनिट की कन्वर्जन इतनी स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ा सा चीजों को समझना होगा। माइक्रो का मतलब होता है -6, गीगा का मतलब होता है +9। माइक्रो से तुम्हें गीगा की तरफ जाना है, तो आपको 15 स्टेप्स मूव होने हैं। दोबारा समझिएगा जरा, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूं। ये फर्स्ट टाइम है कि जहां पर आपको थोड़ा यूनिट समझने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो गया इसके। एक्चुअली वो तुम्हें क्वेश्चन देगा 2.5 माइक्रोमीटर इनटू किलोमीटर फॉर एग्जांपल। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2.5 को छोड़ दो अभी। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसका मतलब 1 मीटर, तुम कहोगे ये 10⁻⁻6 इधर ले जाके हम डिवाइड कर दें, तो ये 10⁻⁻6 एज इट इज डिवाइड हो गया, जिसको आप कह सकते हैं ऊपर लाकर 10⁻6 माइक्रोमीटर। -6 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा तो +6 हो गया। इसी तरह से 1 किलोमीटर तो तुम कहोगे 1000 मीटर। अब मैं कहूंगा बेटा 1 मीटर का मतलब, तो आप कहेंगे सर 1/1000 का मतलब 10⁻3 किलोमीटर। मैं कहूंगा डिनोमिनेटर से ऊपर ले आओ, तो तुम कहोगे इसका मतलब 10⁻³ किलोमीटर। इट मीन्स कि 1 मीटर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर भी है और 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोमीटर के इक्वल भी है। तो इट मीन्स कि 10⁻6 माइक्रोमीटर एक्चुअली इक्वल है 10⁻³ किलोमीटर के। तो 10⁻6 माइक्रोमीटर अगर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर है, हमेशा हमेशा जो भी दो यूनिट्स क्वेश्चन में दिए होंगे आपको, whenever two units are given in a question, convert both of them units into meter, मीटर को स्टैंडर्ड बना लो। मीटर को स्टैंडर्ड, ये ट्रिक है इसकी कि मीटर को स्टैंडर्ड बना लो। अगर मीटर को स्टैंडर्ड बना लिया तो मीटर को स्टैंडर्ड बनाने के बाद अब आप इसको लिख लें इस तरह से, और जब 1 मीटर इसके बराबर 1 मीटर इसके बराबर, तो इट मींस 10⁻6 10⁻³ किलोमीटर के इक्वल। तो फिर 2.5 माइक्रोमीटर x किलोमीटर के इक्वल, बस आखिर में रेशियो अप्लाई कर दो। तो x इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ तो x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻6। जब ये न्यूमरेटर में आएगा बेटा तो ये बन जाएगा 10⁻⁻9 किलोमीटर। ये 6 है, ये न्यूमरेटर में आएगा इसी जगह पे, तो 10⁻⁻6 होगा, और -6 -3 के साथ होगा तो -9। ये क्लियर है? पहले ये बताएं मुझे, इज दिस क्लियर? अब सुनो बेटा, अब मैं एक और चीज आपको सिखाऊं। देखो स्टैंडर्ड यूनिट्स ये हैं, लिसन।
स्टैंडर्ड यूनिट्स तुम्हारे पास ये हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड्स। इन स्टैंडर्ड्स को तुम्हें ख्याल रखना है बस। अब ये स्टैंडर्ड्स कैसे यूज होंगे, अब ये समझें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि कन्वर्ट लिखना अपने पास, कन्वर्ट 1.8 मिलीमीटर स्क्वायर इनटू माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में आप वही लिखेंगे जो, स्क्वायर को छोड़ दो, अभी मिलीमीटर को याद करो। तो मैंने तुम्हें बताया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। सही है, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है, पीछे देख लो जो तुमने लिखा है ऊपर उसमें। अच्छा, फिर मैंने कहा इसको कन्वर्ट करो मीटर के लिए। अरे यार, क्या ये रब हो गया यार, कोई बताएगा क्वेश्चन में क्या लिखा था मैंने? कन्वर्ट कितना, 2 पॉइंट कितना था? 1.8 मिलीमीटर स्क्वायर 1.8 मिलीमीटर स्क्वायर इनटू माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो बेटा स्टार्ट में आपने ये करना है कि सबसे पहले तो बेसिक रिलेशन लिखना है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो इट मींस 1 मीटर के लिए ये बन गया 10 टू द पावर -3, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो यू कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। अब देखो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में है, तुम्हें अगर स्क्वायर करना है तो अब आप 1 मीटर जो 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर है उसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। अगर क्वेश्चन में क्यूब हो तो इसको क्यूब कर दो दोनों साइड पे। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि रिमेंबर वन थिंग कि 10 की पावर ए और उसकी होल पावर बी होती है, तो इंडाइसिस में आपके पास होगा 10 की पावर ए इंटू बी, ये डबल पावर मल्टीप्लाई होती है एक्चुअली। 1 मीटर स्क्वायर तो तुम्हारे पास ये रिलेशन आ गया कि 1 मीटर स्क्वायर होगा तो 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। अब आ जाए माइक्रोमीटर। स्टैंडर्ड 1 माइक्रोमीटर लिस्ट में तुम्हारे पास लिखा हुआ है पीछे -6 मीटर के इक्वल है। इट मींस 1 डिवाइडेड बाय -6 माइक्रोमीटर 1 मीटर के इक्वल है, जिसको मैं लिख सकता हूं इट मींस 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर +6 माइक्रोमीटर। इस 10 की पावर -6 को न्यूमरेटर में लाया तो +6 हो गया। अब फिर दोबारा वही है कि स्क्वायर में तो आप इसको स्क्वायर करोगे, तो इट मींस यू विल राइट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 माइक्रोमीटर स्क्वायर। बेटा ये रिलेशन मीटर स्क्वायर के लिए इक्वल है। 1 मीटर स्क्वायर इतने मिलीमीटर स्क्वायर है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर 12 माइक्रोमीटर स्क्वायर। So it means 10 to the power 6 millimeter square is equals to 10 to the power 12 micrometer square. So 1.8 millimeter square is equals to x micrometer square होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1.8 into 10 to the power 12 और x is equals to 1.8 into 10 to the power 12 divided by 10 to the power 6.
इस 6 को आप न्यूमरेटर में ले आओ। ये तो मैं तुम्हें एक एक स्टेप इतना ब्रेक कर करके बता रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं बाकायदा, तो जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको फास्ट भी कर सकेंगे। ये 10 टू द पावर 6 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में आया बेटा तो 10 टू द पावर -6 हो गया, 12 में से 6 माइनस किया आपने, दैट बिकम 6। अब तुम्हारे पास एरिया है, वॉल्यूम है, डायमीटर है, रेडियस है, कुछ भी है, कुछ भी है, यू कैन कन्वर्ट इट लाइक दिस। आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्वेश्चन एक करके दिखाओ। अच्छा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे ये थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, मुझे दोबारा व्हाइट बोर्ड ऑन करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? नाउ लुक, राइट डाउन क्वेश्चन और आप लोग सॉल्व करेंगे। यार पीछे वाली स्लाइड दाऊद, अब वो सब खत्म हो गए। अब किसी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो प्लीज शेयर कर दे। क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट इन किलोमीटर क्यूब। करें जरा सॉल्व खुद से। टाइम दे रहा हूं आपको, 2 मिनट 3 मिनट ले लें, खुद से सॉल्व करें जरा। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी बेटा इस पूरे वीक की, तो काइंडली आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी वेटिंग पर हैं, अभी क्लास ज्वाइन नहीं किए, उन्हें बता दें कि फ्राइडे तक क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि फ्राइडे तक मैं आपको यूनिट्स वगैरह कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक में हम अनसर्टेनिटी शुरू करेंगे, जो चैप्टर 1 की सबसे मेन टॉपिक है। फर्स्ट वीक में हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस में यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और कितने टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम कर लेंगे। अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन कर लें, उस रजिस्टर पे आपने सिर्फ फिजिक्स का काम करना है थॉरली। सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। कोई भी चीज अगर मैं लिखवाऊंगा तो यू हैव टू राइट इट इन योर रजिस्टर। कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी तो काइंडली मुझसे फौरन पूछेंगे। आंसर आ जाएगा जिसका, तो वो मुझे मैसेज पे चैट पे टाइप कर दें आंसर क्या आ रहा है। बाकी आप लोग चेक करें, सबके आंसर यही आ रहे हैं।
क्या कर रहे हो यार? चेक करें आंसर जरा। वन सेंटीमीटर -2 मीटर और 1 मीटर डिवाइड इक्वल टू 1/-2, इसको लिख सकते हो 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, सॉरी +2, मतलब 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल। 1 मीटर क्यूब become this. So 1 meter cube is equal to 10⁻6 centimeter cube. One kilometer beta is equals to 10⁻³ meter. 1/10⁻³ meter is equals to 1 meter, जिसको मैं लिख सकता हूँ, I can write this as 10⁻³ किलोमीटर 1 मीटर के इक्वल है। इसका मतलब इसको भी मैं क्यूब कर रहा हूँ। So 1 meter cube is equals to 10⁻³ का 9 - 9 किलोमीटर क्यूब। It means if you compare these two, then you can write 10⁻6 centimeter cube is equals to 10⁻⁻9 kilometer cube. So 4.2 centimeter cube is equals to x. ये करना था 10⁻6x is equals to 4.2 into 10⁻⁻9. So x is equals to 4.2 10⁻⁻9. ये 10⁻6 इधर आके डिवाइड होगा ना, +6 में ही डिवाइड होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो 10⁻6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम फैक्टर आकर डिवाइड होगा। और जब डिवाइड होगा इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे, -6 से ऊपर +6 है, न्यूमरेटर में आके -6, तो -15 आंसर होगा ना बेटा, किलोमीटर क्यूब। तो ये बेसिक मिस्टेक हो रही है आपसे, शुरू में होती है, सबसे होती है, कोई मसला नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको प्लीज? ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन, सिंपल यूनिट कन्वर्जन स्क्वायर के और क्यूब के, ये आपको आने चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वी हैव write down heading topic. First topic we have topic number 1, units, physical quantities and units. Units and physical quantities. Write down. Physical quantities
are those which can be measured. Few physical quantities are basic quantities. फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, वो क्वांटिटीज जो बेटा मेजर हो सके. फॉर एग्जांपल लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स. मतलब हम फिजिक्स में जितनी कैलकुलेशन करते हैं, जितने टर्म्स देखते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. हाइपोथेटिकल तो नहीं हो सकती. हाइपोथेटिकल मींस थिंकिंग, माइंड, राइट. ये जो है आपका है मेंटल स्ट्रेंथ, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है. स्ट्रेंथ, इनका कोई यूनिट नहीं है. फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके यूनिट्स होते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं. एक बेसिक क्वांटिटीज होती हैं. फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज आर बेसिक क्वांटिटीज एंड rest of the quantities are derived quantities. When we talk about basic quantities, so we have total 7 basic quantities. Number 1, length, mass, time, temperature, current, amount of substance, and luminous intensity. हर एक क्वांटिटी अगर बेटा, तो हर एक क्वांटिटी का अपना सिंबल भी है. लेंथ L, मास M, टाइम स्मॉल t, टेम्परेचर कैपिटल T, और ओ लेवल में इसको हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते थे. करंट कैपिटल L, amount of substance moles, luminous intensity is basically represented by intensity only. इसको हम इंटेंसिटी से ही रिप्रेजेंट, इसको लिखते ही इंटेंसिटी है. अच्छा, इन बेसिक यूनिट्स क्वांटिटीज के अपने यूनिट्स हैं, ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड. दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड SI यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट में लेंथ का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर नहीं होगा, मिलीमीटर नहीं होगा. लेंथ का यूनिट मीटर होगा हमेशा. मास का यूनिट ग्राम नहीं होगा, किलोग्राम होगा. टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा सेकंड्स है. टेम्परेचर कैपिटल K का इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज कॉल्ड केल्विन. करंट तुमने पढ़ा हुआ है पहले से, एम्पियर A, मोल MOL, और इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी रिप्रेजेंट होती है CD कैंडेला.
ये वही है जो तुम्हारे पास ओ लेवल्स में भी था, ये आपके पास ओ लेवल्स में भी थे। इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, और these are called basic standard units. These are the units which will be used. मतलब now we have ये लिख लें जरा। तो फिर एक मेरे पास ये मैंने यूनिट्स लिखे तुम्हारी राइट साइड पे। These are called standard basic units. There are two types of units. Number one, basic SI unit. यूनिट्स की बात कर रहा हूं, तो यूनिट्स में तुमने कहा मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ये बेसिक एसआई यूनिट है। एंड आफ्टर दैट वी हैव ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स क्या क्या है बेटा? ओ लेवल्स में याद करो, न्यूटन, पास्कल, वॉट्स, कूलम, जिसको हम कैपिटल सी कहते थे सिर्फ, कूलम। और क्या है? बहुत सारे यूनिट्स हैं, जूल्स हो गया, राइट। ये बेसिकली दीज यूनिट्स आर ड्राइव यूनिट्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के convert the following into basic SI units। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने ये स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए थे। इस बेसिक यूनिट्स ये हैं। ड्राइव यूनिट्स तो बहुत सारे हैं, ये सब मैंने लिखे। इसके अलावा देखो, वोल्ट्स भी ड्राइव यूनिट्स है, ओम्स भी ड्राइव यूनिट्स हैं, ये सब ड्राइव यूनिट्स हैं। अब बेसिकली वो आपसे कह रहा है कि मुझे कन्वर्ट करके बताओ, नंबर वन, न्यूटन को। न्यूटन स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, न्यूटन तो ड्राइव यूनिट है। और ये ड्राइव यूनिट्स का बेसिक एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट का मतलब है ये, सबसे पहले रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि यूनिट किस क्वांटिटी का फॉर्मूला। नहीं बेटा, यूनिट किस क्वांटिटी का, सॉरी हाँ, किस क्वांटिटी का यूनिट है? न्यूटन किस क्वांटिटी का यूनिट है? न्यूटन किस क्वांटिटी का यूनिट है? बताओ जरा, न्यूटन किस क्वांटिटी का यूनिट है? वेरी गुड। तो आप कहेंगे फोर्स। व्हेन यू से फोर्स, तो आई विल राइट फोर्स का मतलब एम ए। तो बेटा अगर फोर्स एम ए के इक्वल है तो एम का मतलब किलोग्राम, ए का मतलब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे फोर्स का मतलब न्यूटन। इसका मतलब न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। इसमें देख लो, किलोग्राम आ रहा है, मीटर आ रहा है और सेकंड आ रहा है। इसका मतलब यही है ना, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। स्क्वायर तो बात है कि है तो सेकंड ही।
तो देख लें किलोग्राम, मीटर और सेकंड तीनों जो हैं वो तुम्हारे बेसिक एसआई यूनिट हैं। तो इस तरह से आप कहेंगे फोर्स का जो न्यूटन है वो न्यूटन एक्चुअली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। इस तरह से हम यूनिट्स बताते हैं। अभी इसमें हम बहुत आगे तक चलेंगे। लेट से सिर्फ एक लास्ट और बताऊं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। वेडनेसडे को सॉरी आपकी क्लास है। जूल्स, जे। अब जूल्स के लिए किस क्वांटिटी का, रिमेंबर जूल्स किस क्वांटिटी का यूनिट है? तो मैं कहूंगा वर्क। वर्क किसके बराबर है? तो आप कहेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो बेटा लेफ्ट साइड पे देखो लिखा है जूल्स, बस क्लास खत्म कर रहा हूं मैं। लेफ्ट साइड पे लिखा है जूल्स, राइट साइड पे फोर्स। तो देखो फोर्स का यूनिट तुमने पहले मुझे बता दिया है ऊपर। अगर तुमने किसी ने न्यूटन इंटू मीटर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तुमसे एसआई यूनिट मांग रहा है और न्यूटन फोर्स है। जूल्स एनर्जी और वर्क डन एक ही तो बात है बेटा। वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज है, चाहे आप उसे वर्क डन लिखें या एनर्जी लिखें, द सेम थिंग। तो फोर्स की जगह पर आप फोर्स का एसआई यूनिट लिखोगे जो तुमने अभी लिखा ms-2 और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो ये बन गया किलोग्राम, ये मीटर का 1 और एक और मीटर का 1, सो दैट इज मीटर स्क्वायर और s-2। ये है बेसिकली जूल्स के इक्वल। फर्स्ट टू यूनिट्स मैंने आपको बताएं, फर्दर हम वेनेसडे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ऑल ड्राइव्ड यूनिट्स को पहला क्वेश्चन आता है कन्वर्ट इनटू बेसिक एसआई यूनिट। तो बेसिक एसआई यूनिट में फर्दर हम और देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। एक काम आप कीजिएगा बेटा, जो आज की क्लास है उसमें जितने भी मैंने ये स्लाइड्स समझाई हैं उसका अगर आपने किसी ने प्रॉपर स्क्रीनशॉट लिया हुआ हो सबका, तो काइंडली जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर लेना। देखो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स जूल्स। सिर्फ एनर्जी नहीं होती, जूल्स वर्क डन भी होता है, हीट एनर्जी भी होती है, सबका यूनिट जूल्स ही है। मैंने यहाँ पर वर्क के फॉर्मूले से ड्राइव किया। थोड़ी देर बाद मतलब मैं तुम्हें कल नेक्स्ट वाली क्लास में किसी और हीट के फॉर्मूले से भी ड्राइव करके दिखाऊंगा, तो देखना यही बनेगा। वर्क के फॉर्मूले से मैंने ड्राइव किया तो मैंने कहा वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन नहीं है, न्यूटन तो ड्राइव्ड है, न्यूटन ड्राइव्ड है। और न्यूटन का खुद एसआई यूनिट ये है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब इन 7 में से होना चाहिए। एसआई यूनिट का मतलब इन 7 में से होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले फोर्स की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा और मल्टीप्लाई डिस्टेंस यानी मीटर से किया, तो ये जूल्स का एसआई यूनिट ये है। joules itself is a derived unit, remember joules itself is a derived unit, and kilogram meter square per second square is the basic unit. Newton is the derived unit of force and kilogram meter per second square is the standard SI unit of force. सही है, इसको हम वेनेसडे को कंटिन्यू करेंगे यहां से बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर।